my channel. My name is Afnan. In this video, I will show you how we can create an authentication system in Laravel 11 with email verification. So first of all, I will give you the demo, then we can again create this from scratch. So I'll just simple open my browser. Here is my Laravel application running. So here is simple registration form. I'll just put credentials here, my name, email and password. Okay, so put here my email address and just simply password. So I'll just click on register. So it bring me to login page and show me message here, we have sent an email to your verify your account. Okay, so I received an email on my account that I registered with email address. So I'll just simple open this email and here you can see a simple button is showing verify email address. So I'll just show you browse. In the browse session I have not yet email verified. Okay, so when I'll just click on this verify email address, I verified my email. Okay, so now I'll just try to log in without verifying. So it give me error, please verify your email to login. So I'll just click on this verify email address and just it bring me to login page again and show me your email has been verified. And all I know, I'll just check this on my database. So it is showing me that I am email verified at time and date. Okay, so I'll just try to log in and now I successfully log into my dashboard. So friend, this is our today video topic. So now we can again create this all authentication system with email verification from scratch. So let's start. So now friends, simply first of all I will create a new Laravel project. For this simple मैं अपनी Laravel directory में चला जाऊँगा and just go to my Laravel directory and here I'll just create a new folder. I name this folder as Laravel email verification. Okay, all set. Just close this and open my VS Code and I'll just open a folder that we created, Laravel email verification. Okay, so simply मैंने इसे open कर लेना है and within this folder we create a new Laravel project and I name this project as email verification. Okay, so within 2 or 3 minutes मेरे पास जो प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा, देन इसको जो अगेन देखते हैं. सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोजेक्ट सेटअप हो गया. ठीक है, सो मेरे पास एक नोटपैड फाइल है. ठीक है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. सो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया. ठीक है, इसके बाद हमें 2 कंपोजर चाहिए होंगे. ठीक है, एज वी आर वर्किंग विद ईमेल सेंडिंग. ठीक है, तो हम मेलगन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मेलगन के लिए एक ये है और एक HTTP क्लाइंट है. ठीक है, तो आप अगर गूगल SMTP यूज़ कर रहे हैं या मेल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप ऐड कर लें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा विद दिस कमांड एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ. ठीक है, यूजिंग दिस कमांड. सो नेम का इशू था वो रिजॉल्व कर लिया. ठीक है, ईमेल वेरिफिकेशन एंड यहाँ पे सिंपली जो है वो ये 2 कंपोजर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, सो विद इन 1 और 2 मिनट्स मेरे पास जो है ये प्रोजेक्ट में सेटअप हो जाएंगे.
सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कंपोजर सेटअप हो गए हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो है हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है अपनी मेल गन की, ठीक है। फॉर दिस सिंपल आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है एंड जस्ट सर्च हेयर मेल गन, ओके। एंड फर्स्ट साइट ओपन कर लेनी है एंड आई ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट, तो सिंपली मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री कर लेना है सिंपली, और जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड, सो यहाँ पे मुझे जो है मेरा ऐसा डैशबोर्ड सा शो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर जो है आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो पहले आपको अपना जो है वो फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा यहाँ पे। देन उसके बाद जो है वो सेंड एंड रिसीव ईमेल कर सकेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव वेरीफाइड अकाउंट, देन ही जो है वो ईमेल जो है वो सेंड वगैरह हो सकेगी और रिसीव हो सकेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम API सिक्योरिटीज़ में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक वेब हूब साइन इन की शो होगी, ठीक है। सो एक हमें इसकी नीड होगी, इसके अलावा जो है वो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह और SMTP वो जो हम ऐड करते हैं। तो सिंपली जो है वो ये मैं कॉपी करता हूँ, मेल है और जो भी क्रेडेंशियल है, ठीक है। एंड जस्ट आई जस्ट सिंपली गो टू ईमेल वेरिफिकेशन एंड .env फाइल, ओके। सो स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे मेल फ्रॉम ये सारे को कट करके इसके ऊपर जो है ये आपने सिंपली पेस्ट कर लेना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये कैसे क्रेडेंशियल ऐड किए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल मेलर जो है वो हमारे पास है मेल गन, ठीक है। इसके बाद मेल होस्ट जो है वो SMTP मेलगन .org, अगर आप गूगल SMTP यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऐड कर लें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास मेल गन सीक्रेट है एंड यूज़र नेम है, और मेल गन डोमेन एंड सीक्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास जो सीक्रेट है मेलगन, ये मेलगन सीक्रेट वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, जो कि ये है, ठीक है। तो सिंपली से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है। आई ऑलरेडी पेस्टेड इट, तो यहाँ पे मैं गेन नहीं करूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपली बस ये करने के बाद आपने आ जाना है सेंड में एंड सेंडिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको जो है वो एक मेलगन डोमेन सी शो हो रही होगी, ठीक है। इसको कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे डोमेन में, जो हमारी डोमेन होगी, ठीक है। सो डोमेन और सीक्रेट सिंपली क्लियर हो गए एंड इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद SMTP सेलेक्ट कर लेना है। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन SMTP हमारे पास जो है क्रेडेंशियल्स शो हो जाएंगे, जो हो गए मेल पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड मेल होस्ट, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ मैंने SMTP मेलगन .org, ठीक है। और मेल पोर्ट हमारी 587 है, तो आपकी अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे यूज़र नेम जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं, ठीक है, ताकि कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो कोई इशू ना आए। एंड जस्ट सिंपली पेस्ट है, ठीक है। तो क्रेडेंशियल सारे ऐड हो गए। इसके बाद मेल फ्रॉम एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो ईमेल ऐड करनी है जिसके ऊपर अकाउंट जो है वो आपने क्रिएट किया हुआ है मेल गन का, तो सिंपली वो ईमेल ऐड कर दी। और इसके अलावा मेल फ्रॉम ऐप नेम, ठीक है। तो ये ऐप नेम ये गेट करेगा जो कि यहाँ पे हमारे पास लारावेल है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ सिंपली वी इसी तरह से रहने देते हैं। सिंपली मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ ENV को, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी क्लियर हो गया। और इसके बाद सिंपली नोटपैड में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एज वी आर वर्किंग विद लारावेल 11, तो इसमें हमें जो है वो ENV के अलावा भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है कॉन्फ़िग फाइल में, ठीक है। तो जस्ट सिंपली गो टू config mail.php एंड जस्ट कॉपी दिस एंड आई जस्ट पेस्ट इट देयर, ओके। सो सिंपल यहाँ से मैं जाता हूँ config एंड यहाँ पे हमारे पास फाइल है mail.php, ठीक है। सो अपने mail.php में जाना है एंड यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे बस इसे सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड Ctrl+S करके सेव कर देना है। ऑल सेट। देन इसे क्लोज़ करते हैं और इसके बाद सिंपल
कॉन्फ़िग और सर्विसेज डॉट पी एच पी में जाते हैं और यहाँ पे से जो है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ऑल सेट। तो ये भी हमने पेस्ट कर दिया सर्विसेज में, मेल डॉट पेज में और ई में, ठीक है। तो हमारी मेल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्लियर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, देन इसके बाद जो है वो ऑथेंटिकेशन करेंगे। सो सिंपली टेस्ट के लिए एक मैं न्यू ईमेल क्रिएट करता हूँ। सिंपल कॉपी दिस एंड जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारी एक न्यू मेल क्रिएट होगी। ऐप में जाके मेल में जाके यहाँ पे आपको मेल शो हो जाएगी, ठीक है। क्विकली इसमें देखते हैं। तो इसमें मैं सिंपल ये ऐड करूँगा, कॉपी दिस एंड आई जस्ट सिंपली ऐड इट हेयर। ओके, तो सिंपल जब भी हम मेल सेंड करते हैं तो हम व्यू के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास व्यू के अंदर डाटा होगा सिंपल जो है वो इसके अंदर पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे व्यू का नेम है emails डॉट टेस्ट। ओके, तो सिंपल टेस्ट के लिए चेक कर रहे हैं कि हमारी मेल की कॉन्फ़िगरेशन हुई है नहीं, ठीक है। तो व्यूज़ में जाकर सिंपल एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ईमेल्स, एंड विद इन दिस फोल्डर I'll just create a new file and name this file as test.blade.php। okay, एंड विद इन दिस फाइल जो भी कंटेंट हमने पास करना है सिंपली जो है इसके अंदर पास कर सकते हैं। सिंपली I'll जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो है टेस्ट ईमेल हम जो है वो सेंड कर देंगे। सो आफ्टर दिस सिंपल राउट्स में आते हैं, ठीक है। एक राउट क्रिएट कर लेते हैं फॉर सेंडिंग दिस। तो यहाँ से सिंपल मैं से कॉपी करता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट हेयर और यहाँ पे ईमेल को जो है वो इंपोर्ट करवा लेते हैं, ऐप ईमेल एंड मेल। ओके, तो मेल को ऐसे ही रहने देते हैं, इट्स नॉट एन इशू। सो नाउ अभी जो है वो हमने यहाँ पे ई में मेल फ्रॉम जिस पे हमने मेल गन का अकाउंट क्रिएट किया था, मेल उस अकाउंट से जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमने एज वी आर वर्किंग विद टेस्ट क्रेडेंशियल्स, तो हमने सिंपल इस ईमेल पे जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। सो फॉर दिस यहाँ पे सिंपल हमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करना होगा ईमेल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेरीफाई किए हुए टू अकाउंट, ठीक है। तो ये वेरीफाई मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। सिंपल मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 132@gmail.com। ओके, तो आई जस्ट सिंपली सेव रिसिप्ट। तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा मुझे जो है वो एक ईमेल रिसीव होगी फ्रॉम मेलगन जिसमें कंफर्म करेंगे कि आप जो है वो मेलगन के ईमेल रिसीव करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। बेशक वो टेस्ट ईमेल्स हैं या ऐप के थ्रू हैं। तो सिंपल मैसेज जो है वो यहाँ पे आपको ईमेल शो होगी, ठीक है। तो आपने अपने किसी भी अकाउंट पे जो है वो अनदर ईमेल अकाउंट पे जिस पे आप टेस्ट करके चेक करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं इस पर चेक करूँगा, सिंपली आई एग्री कर देता हूँ एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन कंफर्म। ओके, तो हमारी मेल एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। मुझे जो भी मेलगन की तरफ से ईमेल्स होंगी यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। ओके, ऑल सेट। देन सिंपल अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं और टेस्ट चेक करते हैं कि हमारी जो है वो मेल सेंड हो रही है नहीं। तो आई जस्ट सिंपली गो टू /send एंड /send अगर तो हमारी ईमेल सेंड होगी तो हमें जो है ईमेल सेंड का मैसेज शो हो जाएगा। ओके, सो आई जस्ट गो टू ./send, ठीक है। तो इट इज़ शोइंग मी मैसेज ईमेल सेंड और यहाँ पे जो है वो मुझे टेस्ट ईमेल रियल टाइम में जो है वो रिसीव होगी। ओके ओके, तो हमारी मेल गन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जो है सिंपली से क्लोज़ करते हैं एंड क्विकली जो है वो अपना डेटाबेस वगैरह जो है वो सेटअप कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं बस सिंपली। तो सिंपल मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक न्यू सबसे पहले जो है कंट्रोलर सा क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं। तो कंट्रोलर क्रिएट कर लिया हमने एंड इसके बाद सिंपल ये मेरे पास सारे राउट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने ये राउट्स सारे कॉपी कर लेने हैं, ठीक है, एंड जस्ट पेस्ट इट web.php में, ठीक है। सिंपल पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोलर को जो है वो इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो कंट्रोलर इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल जो है वो पेजेस रिटर्न करेंगे, रजिस्टर पेज, लॉगिन पेज, डैशबोर्ड पेज, ये वेरिफिकेशन राउट्स हैं एंड ये मेरे पास जो है वो पोस्ट राउट्स हैं, ठीक है।
तो सिंपली अभी क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे मेरे पास जो है वो यूज़र कंट्रोलर आ गया, ठीक है। यूज़र कंट्रोलर बाद में करते हैं, पहले जो है वो व्यूज़ सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। फॉर व्यूज़ सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने वी एस कोड में, एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आई नेम दिस फोल्डर एज यूज़र, एंड विद इन दिस यूज़र फोल्डर आई क्रिएट अ न्यू फाइल रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, एंड इसके अलावा मेरे पास एक फ़ाइल होगी login डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी एंड डैशबोर्ड फाइल, एंड सिंपली इसके बाद जो है वो मेरे पास एक न्यू फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, एंड विद इन दिस फोल्डर मैं ऐड करता हूँ इंक्लूड्स, एंड विद इन इंक्लूड्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नैवबार को, जो है वो हम कंपोनेंट बेस ऐड कर लेंगे navbar डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, एंड आफ्टर दिस साइडबार डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ओके, ऑल गुड। सिंपली बस इसमें जो है वो कोड कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉडल्स में मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो अपना डेटाबेस पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वो पेट, अभी इसमें सबको क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपली ये मेरे पास जो है वो यूज़र मॉडल है, ठीक है। ईमेल वेरीफाइड ऐड ऑटोमेटिकली जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्विकली ई एन वी में जाता हूँ मैं, एंड जस्ट अनकमेंट आउट करना है अपने डेटाबेस का सारा, एंड यहाँ पे मैं लोकल होस्ट अपना ओपन करता हूँ जैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, एंड आई नेम दिस एज ईमेल। सिर्फ ईमेल के नेम से कर लेता हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव टू मच डेटाबेसेस। ईमेल, ओके, ईमेल के नेम से हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, एंड जस्ट यहाँ पे मैं डेटाबेस नेम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैम्प के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो है माइस्क्यूएल होता है। सिंपल कॉपी करना है अपने से कॉन्फ़िग में जाके, डेटाबेस में जाके, और यहाँ पे भी बस माइस्क्यूएल कर देना। ओके, ऑल सेट। एंड जस्ट कमांड में यूज़ करता हूँ पी एच पी आर्टिजन माइग्रेट, एंड आफ्टर माइग्रेटिंग तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो सारे टेबल्स वगैरह क्रिएट हो गए, ठीक है, यूज़र टेबल। और यूज़र टेबल में ऑलरेडी मेरे पास जो है ईमेल वेरीफाइड ऐड का कॉलम है, ठीक है। ऑल गुड। देन क्लोज करते हैं, डेटाबेस भी सेटअप हो गया। अब सिंपली जो है बस कोड कॉपी पेस्ट करते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, और उसके बाद जो है कंट्रोलर को देख लेते हैं। तो व्यूज़ रजिस्टर का पे कोड है ये मेरे पास, सिंपल मैं इसे कॉपी करता हूँ, एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट हेयर, ओके। एंड इसके बाद लॉगिन, फॉर लॉगिन के लिए मेरे पास है लॉगिन पेज कोड। तो ये मैंने एक टेम्पलेट यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये लॉगिन का पेज भी मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे इंक्लूड्स नैवबार है, कंट्रोल सी एंड जस्ट पेस्ट इट, इंक्लूड्स navbar डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, साइड बार, एंड लास्ट में मेरे पास जो है वो डैशबोर्ड है, ओके। तो सारे व्यूज़ में हमने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। देन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जो है वो कोड सारा हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो रजिस्टर पेज है, लॉगिन पेज है, ठीक है। तो ये मैंने टेम्पलेट यूज़ की हुई है, ठीक है, यूज़र टेम्पलेट स्लैश, और इसके बाद जो JS टूल के सारे जो है वो यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें टेम्पलेट चाहिए होगी। फॉर दिस सिंपल में से क्लोज़ करता हूँ, एंड सिंपल आपने ब्राउज़र में जाना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्काई डैश
एडमिन टेम्पलेट फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो फर्स्ट साइट में हमने चले जाना है। तो फर्स्ट साइट से भी आप कर सकते हैं, सेकंड साइट से भी जा सकते हैं और गिटहब से भी जो है वो इसका लिंक, सिंपली आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन डाउनलोड, ठीक है, तो मेरे पास जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव दिस जिप फाइल, तो मैं इसको अगेन डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये जिप फाइल जो है सिंपली एक्सट्रैक्ट की हुई है अपने डैशबोर्ड पे। सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ एंड आई जस्ट कॉपी दिस पेजेस, वेंडोर्स, SCSS, पार्शल्स, पेजेस को नहीं, JS, इमेजेस, फ़ॉन्ट, डॉक्स, CSS। तो सिंपल बस ये कॉपी करना आपने एंड अपने प्रोजेक्ट में आके जो पेस्ट कर देना पब्लिक में, लारावेल। एंड हमारे प्रोजेक्ट का नेम था ईमेल वेरिफिकेशन। कौन, ठीक है। तो लारावेल ईमेल वेरिफिकेशन एंड पब्लिक में जाके सिंपली जो वैसे पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे हमारे पास पेस्टिंग कंप्लीट हो गया। सिंपली से क्लोज करते हैं एंड नाउ आई जस्ट गो टू पब्लिक। तो ये मेरे पास SCSS, डॉक्स, फ़ॉन्ट वगैरह, ठीक है। तो सिंपल रजिस्टर में जाना है आपने एंड यहाँ पे नाउ अभी जो है यूज़र टेम्पलेट ऐड हुआ है, बस इसको रिमूव करना है और सिंपली यहाँ पे जो है वो इसको सिंपल /JS गेट कर लेगा, ठीक है। और टॉप पे जो है वो CSS वगैरह ऐसे ऐड है, ठीक है। तो अब सिंपल मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं /user/login। तो अभी हमने जो है वो कंट्रोलर्स में जो फंक्शन डिफाइन नहीं किया, सिंपल बस उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अभी जो है वो मैं एरर देखा, ठीक है। तो कंट्रोलर नॉट डिफाइन, ठीक है, फंक्शन नॉट डिफाइन। सिंपल आपने स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे जो भी ऑथेंटिकेशन के लिए राउट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, सिंपली ये बस कॉपी करना है इन्हें एंड आई जस्ट गो टू कंट्रोलर्स, यूज़र कंट्रोलर में जाकर सिंपली से पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा इनको इंपोर्ट करवा लेना है। और यूज़र मॉडल भी, के अलावा वेरीफाइड, यहाँ पे मैंने जो है वो सारे ऐड अप करवा लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें हैश, तो सिंपल मैं हैश को सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ आई जस्ट गो टू माई ब्राउज़र एंड मैं इसे रीलोड करता हूँ। तो नाउ अब जो है मेरे पास जो है वो लॉगिन पेज वर्किंग में होगा, ठीक है। इसके अलावा रजिस्टर पे जाते हैं, रजिस्टर भी वर्किंग में है, ठीक है। और डैशबोर्ड पे जो है वो हम जा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम रजिस्टर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्रेडेंशियल, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटस इसका वेरीफाइड हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया था। तो नाउ आई जस्ट यहाँ पे अभी जो है वो रजिस्टर करते हैं नान, ठीक है। एंड आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे जो आप ईमेल ऐड कर रहे हैं वो ये ईमेल वेरीफाइड होता है, देन ही जो है आपको ईमेल रिसीव होगी। एज़ वी आर वर्किंग विद टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट के लिए ऐसे है, अगर आप मेलगन का पेड अकाउंट ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी ईमेल पे जो है वो सेंड कर सकते हैं। सिंपली मैं क्लिक करूँगा पासवर्ड रजिस्टर पे, तो यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव हो जाएगी वेरिफिकेशन एंड इसके अलावा जो है मुझे यहाँ पे मैसेज भी शो हो जाएगा और लॉगिन पेज पे जो है वो चला जाएगा। सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर, सेंड एन ईमेल टू योर अकाउंट। तो इस पर चेक करते हैं डेटाबेस में। सो डेटाबेस में तो हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हुआ, बट यहाँ पे ईमेल वेरीफाइड है, इनमें नल है, ठीक है। ईमेल चेक करते हैं तो हमें ईमेल अभी जो है वो रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव एन इशू, यहाँ पे एक मसला है
सिंपली मैं जाता हूँ गूगल पे, क्योंकि हम एक चीज़ जो स्किप करें, ठीक है। तो लारावेल 11 आपने लिखना, लारावेल 11 ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट साइड आपने ओपन करनी है, एंड यहाँ पे हमने जो है वो एक चीज़ ऐड करना भूल गए, यूज़र में मॉडल में जो जाके हमने ये ऐड करना था, ठीक है, मस्ट वेरीफाई ईमेल। सिंपली इसको कॉपी करते हैं एंड आई जस्ट गो टू मॉडल्स यूज़र डॉट पी एच पी, एंड यहाँ पे सिंपली जो है वो मैं ये ऐड कर देता हूँ बस, ठीक है। सेकेंड, एक्सटेंड्स ऑथेंटिकेबल, एंड इसके बाद मस्ट वेरीफाई ईमेल, ठीक है, और इसको इंपोर्ट करवा देना आपने। सिंपली बस ये करना है। देन इसके बाद मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पे, और इसे मैं डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड को, एंड जस्ट रीलोड दिस, एंड यहाँ से जाते हैं हम क्रिएट में, यहाँ पे मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ। ओके, ऑल गुड। अपनी ईमेल चेक करते हैं, ईमेल रिसीव हुई है, ठीक है। इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने वेरीफाई किया तो यहाँ पे मुझे कह रहा है योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, एंड ब्राउज में जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे मुझे जो है ईमेल डेट एंड टाइम जो है वो वेरीफाइड जो है यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो नाउ अब जो है वो ऐड लॉगिन करके देखते हैं। तो सिंपली जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जो वैसे शो हो रहा है, ठीक है, बिकॉज सेम इशू डैशबोर्ड में आपने जाना है, और यहाँ पे टॉप पे जाके ये आपने हटा देना बस, सिंपली यूज़र टेम्पलेट, ठीक है। सिंपली बस ये हटाना है, और इसके बाद यहाँ से फोटो से भी जो है इसको ओके, ऑल गुड। सेव करते हैं, और इसे जो है मैं बस रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। नेम शो हो गया जिस यूज़र ने लॉगिन किया, और इसके अलावा यहाँ से सिंपली जो है इसे लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है।